Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you geography. In this book, I am going to teach our new topic, ocean floor configuration. Configuration means ocean floor shape. I already taught you what is the shape before the Second World War. Each and every person thought that there would be like a smooth surface, but it was not a smooth. Okay, it has so many shapes. Like we divided our ocean floor into three parts. One is the continental margin, another is the basal plain, and mid-oceanic ridge. In this topic, continental margin also divided it into three parts: continental shelf, continental slope, continental rise, and deep oceanic trenches. Okay, now firstly I am going to draw a map of your ocean floor configuration. Listen carefully. But in this, listen. Have you seen the sea floor? Yeah, have you seen the sea offshore? आपने बेटा देखा है कि have you seen? Listen carefully. जब आप कभी गए होंगे ओशन फ्लोर के आसपास में, तो आप यहाँ पे रहते हैं. थोड़े बच्चे जिनको तैरना आता है, they know how to swim, so they go deep. वो थोड़ा से और डीप में चले जाते हैं. समझ में आ रहा होगा? थोड़ा सा हल्का सा स्लो बनाया. आई हैव मेड अ लिटिल स्लो. ठीक है. जैसे जैसे अपन ओशन फ्लोर के अंदर आगे जाएंगे, वाटर इज गोइंग टू बी डीप, या जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी. ठीक है. तो इसी को ही जहां तक आप लोग घूमते हो, पानी जहां तक आपको आता है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ. क्लियर है? फिर जहां से ये स्लोप स्टार्ट होता है, अ प्लेस वेयर दैट स्लोप वुड स्टार्टेड, इट नोन एज द कॉन्टिनेंटल स्लोप. ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया. क्लियर है? देन आफ्टर हो सकता है इस टाइप की शेप हो, मींस इट्स लाइक ए स्मूथ सरफेस. देन दैट floor again rise, that is known as the continental rise. Okay. Then after again there will be a deep slope, and then after a deep trenches, means खाइयां. ये खाई बन जाती है नीचे जाके. ठीक है. और फिर ये आपका, अच्छा सुनो, listen, continental shelf, continental slope, continental rise, and deep ocean trenches. I think you know very well. Now come to the abyssal plain. This type of the surface is known as the abyssal plain. Mostly erosion particles are collected in this region. जो भी आप यहाँ पे गार्बेज वगैरह, बिकॉज जो वेव्स होती हैं, दे रेगुलर इरोजन देयर बाउंड्रीज. कोई माउंटेन है, इस माउंटेन को वाटर के इरोजन करेगा. दिस इरोजनल मटीरियल going to collected in this place. These places are known as the abyssal plains. इनको abyssal plains बोलते हैं. Clear है? Then after the mid oceanic ridge. Mid oceanic ridge का मतलब हो गया सी के अंदर, mostly mid of the sea there would be a great mountain range. एक बड़ी सारी माउंटेन रेंज होती है, इसी को अपन मिड ओशियनिक रीज कहते हैं. टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट द मिड ओशियनिक रीज, बिकॉज इन द कमिंग चैप्टर देयर वुड बी ए वन चैप्टर ऑन दिस टॉपिक. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? ओके, आई एम गोइंग टू, इफ यू अंडरस्टूड नाउ, देन आई एम गोइंग टू टीच. अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. ये चीज समझ में आ गई? बिकॉज एंड व्हेनेवर यू विल राइट दिस टॉपिक यू विल यूज योर ओन लैंग्वेज. चलो, in this section we shall note a few things related to the ocean floor configuration that help us in the understanding of the distribution of continent and ocean. You will be studying the detail of ocean floor relief in chapter 13. Okay, chapter number 13 में आपको बहुत detailed information I will give you. The ocean floor may be segmented into three major divisions based on the depth as well as the form of relief. These divisions are continental margin, deep sea basin. Deep sea basin means जो नीचे जाके बेसिन बन जाए तो उसको deep sea basin कहते हैं, इससे नीचे ना हो, and mid oceanic ridge. Okay, three parts में बांट दिया. Continental margin, these form the transition between the continental shore and deep sea basin. यह जो
एरिया है यह कॉन्टिनेंटल शोर यानी कि किनारे से लेकर डीप सी बेसिन तक के जो बीच जो बनते हैं इस वाले एरिया को बीच से कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ऑफ दीज दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशियनिक ट्रेंचेस मतलब खाइयां। ऑफ दीज द डीप ओशियनिक ट्रेंचेस आर द एरिया विच ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्टेड in so far in the distribution of ocean and continent is concerned। अब बेसिक मैंने आपको बता दिया, मिड ओशियनिक रिज आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, लिसन, अपना जो ओशन फ्लोर है ये स्प्रेड हो रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? देखो जैसे सपोज कीजिए ये कोई ट्रेंच है ऐसे, ठीक है। अब यह जो ट्रेंच है इसकी वजह से हमारा ओशन फ्लोर ऐसे स्प्रेड हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब इससे क्या होगा, हम कैसे कह रहे हैं सर ये स्प्रेड हो रहा है? हमारे पास में एविडेंस हमको रखने पड़ेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई माउंटेन बनी हुई थी, सपोज करते हैं पहले हो सकता है कि ट्रेंच था ये ट्रेंच था, ये अपन इसको बिल्कुल लाइन बना दी, तो यहाँ पे कोई माउंटेन था, ठीक है। अब जब सी फ्लोर स्प्रेड होगा तो ये माउंटेन यहाँ से टूट जाएगी, तो धीरे धीरे यहाँ पे ये सरक जाएगा, तो ये दोनों माउंटेन यहाँ आ गई और इन फ्यूचर हो सकता है ये माउंटेन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे से लावा निकलता जाएगा, बाहर भी निकलेगा इस तरीके से, यानी कि जब अपन इन दोनों माउंटेन को स्टडी करते हैं तो इन दोनों की एज सेम है, यानी एक दोनों साथ तो नहीं आएंगे, हो सकता है एक जब बनी होगी दैट वाज ए सिंगल लैंड मास, एक लैंड मास होगा, देन सी स्प्रेड हुआ, सी फ्लोर स्प्रेड हुआ, सो देयर विल बी ए गैप बिटवीन दिस टू माउंटेन, ओके। फिर क्या हुआ, अब ये माउंटेन सरकती हुई यहाँ दूर हो गई और दूर हो गई, अब जो नई माउंटेन फिर बन रही है। अब जब अपन कंसीडर करते हैं तो इनकी जो एज अगर काउंट करते हैं कार्बन डेटिंग से और इनकी एज काउंट करते हैं तो ये ओल्ड लगती है और ये न्यू है। इसका मतलब हो गया ये नीचे से निकलती जा रही है और नई नई बनती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल मिला अपन को वो मटेरियल भी सेम था, तो ये कुछ चीजें थी जिसके बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि सी फ्लोर में स्प्रेड हो रहा है। नेक्स्ट चीज क्या है, सी में जो माउंटेन्स हैं इनकी एज काफी पुरानी है, इनकी एज काफी यंग है, और जो अपने कॉन्टिनेंट्स में जो मिलती हैं आपको माउंटेन्स वगैरह, इनकी जो एज है वो ज्यादा ओल्ड है और इनकी एज जो है वो ज्यादा न्यू है। इस वजह से कह रहे हैं कि ओशन फ्लोर जो है हमारा स्प्रेड हो रहा है। इसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं। As mentioned about the post-drift study provide considerable information that was not available at the time of the Wagner। जो आज हम बात कर रहे हैं ये वैगनर के टाइम में ये वाली इंफॉर्मेशन उस टाइम में नहीं थी, तो इसके पीछे नहीं थी, तो वैगनर के पास होती तो वैगनर इसको और अच्छे ढंग से समझाता। तो इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिज वोल्केनिक इरप्शन आर कॉमन। मिड ओशियनिक रिज नीचे की तरफ, तो मैंने बताया था एक there would be one mountain range mostly situated in the mid of the ocean, उसको मिड ओशियनिक रिज कहते हैं। मिड ओशियनिक रिज जो थी ये मिड ओशियनिक रिज है, सी के नीचे की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे लावा निकलना कॉमन बात, ये लावा यहाँ से निकलता जा रहा है, तो सी फ्लोर स्प्रेड हुआ, ये थोड़ा सा दूर होता चला जाएगा, ठीक है। आपने कभी देखा हो कोई भी ऑपरेशन होते हुए, देखा है कभी ऑपरेशन कोई होता है, जैसे ये अपनी स्किन है, डॉक्टर क्या करेगा, इसको कट लगाएगा हल्का सा, कट लगाने के बाद में इन दोनों स्किन को खींचेगा वो, और फिर और डीप समझते जाना। ये देखो कट लगा दिया, कट लगाने के बाद में ये कट इस तरीके से हो गया, फिर इसको दोनों स्किन को ये ऑपोजिट साइड में स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से फिर ये और नीचे गहरा होता चला जाता है और ये स्किन दूर होती चली जाती है। तो वही वाला सिस्टम इसमें है। कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सरफेस इन द एरिया। सेकंड क्या था, रॉक एक्विडिसेंट, यानी दोनों साइड में,
on the either side of the crest of the mid-ocean acreage show remarkable similarities. जो rocks मिली हैं इनमें काफी सारी similarities थी. Chemical composition and magnetic property सेम भी थी. किस किस को केमिकल कंपोजिशन कंसीडर करते हैं इन दोनों का तो सेम आता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं तो भी सेम आती है, यानी कि ये एक ही साथ में एक ही टाइम पे निकली थी. हैव नॉर्मली पोलरिटी एंड द यंगेस्ट, और जैसे जैसे निकलते जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे पुरानी माउंटेन होगी, यहाँ पे न्यू होगी, यहाँ पे न्यू होती जाती है, और जैसे जैसे ये सरफेस पे पहुंचती जाएंगी तो सरफेस पे माउंटेन जो है पुरानी होती जाएंगी. Rock closer to the mid-ocean acreage have normal ऐसे हो गया. The age of the rocks increase as one move away from the crust. New होती चली जाती. Ocean crust rock are much younger. Ocean crust मतलब जो ओशन के नीचे जो मिलती हैं माउंटेन रेंजेस, दे आर द यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स. जो सरफेस पे रॉक्स मिलती हैं उनसे नहीं है, यानी कि इनका स्प्रेड अभी भी हो रहा है. The age of rock in the ocean crust is now more than 200 million years old. Some of the continental rock formations are as old as 3200 million years. इतनी साल पुरानी है. Sediments of the ocean floor. Sediments का मतलब होता है जब ये सरफेस रॉक्स को काटती हैं, सरफेस रॉक को काटने के बाद में जो इरोजनल मटेरियल है वो नीचे आके जमा हो जाता है ओशन फ्लोर में. ठीक है, कि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही पतली है. पतली का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से मटेरियल जो है रिमूव होता जा रहा है, यानी कि मटेरियल जो ओशन फ्लोर है इट इज गोइंग टू बी स्प्रेड, फैलता जा रहा है. सपोज कीजिए जैसे अपने अर्थ का सरफेस है और अगर ये चौड़ा हो रहा है तो ये यूं ऐसे 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 चौड़ा होता चला जाएगा. तो देखो दोनों तरफ से मूव हो रहा है. Floor as old and continent to the complete sequence sediments for a period of much longer duration. However, now where was the sediments column found to be older than 2000 million year ago. दूसरा था जैसे जैसे ट्रेंचेस में अपन जाएंगे यहाँ पे जो अर्थक्वेक आता है उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी कम होती चली जाती है. To deep trenches have deep-seated earthquake occur, while in the mid-ocean acreage area the quake foci have shallow depth. ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं प्लेट टेक्टोनिक. प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आपको बता देते हैं. प्लेट टेक्टोनिक मीन्स अपर लेयर ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट. आई ऑलरेडी taught you in the earthquake topics. तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? अपर लेयर ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट. ये क्रस्ट है अपनी क्रस्टमेंटल कोड पढ़ा होगा आपने. तो यहाँ पे एरिया अबाउट 200 किलोमीटर डेप्थ तक का जो एरिया है एस्थेनोस्फेयर से ऊपर. एस्थेनोस्फेयर इज द लेयर विच डिवाइडेड द क्रस्ट एंड द मेंटल. मेंटल और क्रस्ट को डिवाइड करने वाली एक लेयर है एस्थेनोस्फेयर. उसके ऊपर वाला जो एरिया है वो लिथोस्फेयर कहलाता है क्रस्ट वाले को. अच्छा, लिथोस्फेयर की जो डेप्थ है यह एरिया वाइज अलग अलग है. कैसे एरिया वाइज कैसे कैसे अलग अलग है? दिस थिंग आई ऑलरेडी टॉट यू इन द अर्थक्वेक टॉपिक. लिसन दिस वन. दिस इज द सी फ्लोर, सी बेसिन. These are the plains and this is the mountainous region. Okay, if we consider the depth of the lithosphere from the ocean floor, it would be a 5 kilometer. From the plain, it would be a 30 kilometer, and from the mountainous region, it would be a 70 kilometer. ये 70 किलोमीटर के आसपास है. अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स बताया था आपको. When the earth was formed, there will be a one land mass. It is known as the Pangeo, and there will be a one water body. It is known as the Panthalassa. Clear? Then after due to the internal heat and pressure, it divided into two parts. Northern part is known as the Laurasia, and the southern part is known as the Gondwana. Then after it breaks into some more parts. Okay, some parts are major and some parts are minor. Major parts are known as the continent and minor parts are known as the islands. Okay, okay. In this, firstly, while these plates move away from each other, there would be a force that emerge by the pole filling force and the tidal force. This thing I already taught in the previous topic.
बेटा नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप देखते ही समझ जाएं, ताकि मेरे को वो चीज समझानी ना पड़े, ठीक है। तो बॉल फिलिंग फोर्स की वजह से इन प्लेटों के बीच में मूवमेंट होता है। अब ये मूवमेंट पढ़ लेते हैं। तो वन मूवमेंट होता है कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट in this when the two tectonic plates coming toward each other it is known as the convergent movement। इसमें क्या होगा, जब टू प्लेट एक दूसरे के पास आएगी, हो सकता है ये इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाए, या ऐसे भी हो सकता है ये प्लेट इसके नीचे आ जाए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, चलो मैं समझ देता हूँ एक बार, ध्यान दीजिए। ये टू टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे एक दूसरे के पास आई, ऐसे आएंगे, तो क्या होगा, ये अपलैंड बन जाएगा। जैसे यूं आके तो ये यूं हो जाएगी अपलैंड, ऊपर सरफेस सबको ऊंचाई सा दिखाई देगा। या ये टू टेक्टोनिक प्लेट्स में से एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी। जब ये नीचे जाएगी तो यह इसके ऊपर जोर लगाएगी, जिसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर फोल्ड पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से फोल्ड माउंट कौन सा है, हिमालय जो इट इज नोन एज द फोल्ड माउंट, फोल्ड पड़ जाते हैं। ओके, ये तो था कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट था। देन आफ्टर द डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक, इसमें व्हेन द टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, टू टेक्टोनिक प्लेट्स थी ऐसे, वन थी, ये दोनों एक दूसरे से दूर चलेगी, तो यहाँ क्या बन गया, देयर विल बी वन गैप, दिस गैप इज नोन एज द रिफ्ट वैली, रिफ्ट बन जाता है। देखो इन्होंने कोई पहाड़ नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा खड़ा होगा तो इसको इधर भी और इधर भी पहाड़ दिखाई देगा। जैसे मेरे दोनों तरफ वॉल है और मैं बीच में खड़ा, और ये पहाड़ है, ये पहाड़ बनता नहीं है, डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से ये पहाड़ लगता है, ठीक है। इनमें जो एजेस हैं बहुत ही शार्प एज होंगे, जैसे आप कोई लड्डू इस पर तोड़ो या आप कोई भी पत्थर को तोड़ते हैं तो क्या बिल्कुल शार्प स्मूथ सरफेस थोड़ी ना होता दोनों में, थोड़ा ऐसा शार्प एज होते हैं, समझ गए किनारे। देन आप होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या था बेटा, जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली फ्रॉम ईच अदर, ऐसे हैं तो ये ऐसे सरकते हैं, तो इनको ट्रांसफॉर्म लैंड बाउंड्रीज कहते हैं। अच्छा, इसमें टॉपिक में आज आपको नई चीज बताएंगे कि जो सम माइनर प्लेट्स हैं जिनका कभी आपने नाम नहीं सुना, इन दिस टॉपिक में आपको उनके नेम्स बताऊंगा। चलो एक बार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। सिंस द एडवेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, दे लेता हूं, चलते हैं। McNeice and Parker are also Morgan independently collect the available ideas and come out with another concept term, plate tectonic. Okay, in tectonic plates also called lithosphere plate, जिसमें मैंने बताया इसको लिथोस्फीयर भी बोल देते हैं। 4 डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ पढ़ा होगा आपने, 4 में, एक में लिथोस्फीयर आ गया, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इज ए मैसिव इरेगुलर शेप स्लैब ऑफ solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere। यह जो स्लैब है लिथोस्फीयर, इसमें ओशियन भी आ जाता है, मैंने बता दिया यहाँ पे ओशियन था, और कॉन्टिनेंट भी आ जाते हैं इसमें। प्लेट मूव हॉरिजेंटली ओवर द एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर मैंने बताया था क्रस्ट और मेंटल के बीच में बहुत ही सॉफ्टेस्ट पार्ट है या एक लेयर है, इट डिवाइडेड दैट दीज टू लेयर्स। टॉप मेंटल लिखा हुआ भी, लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल विद इट्स थिकनेस रेंज वेरीज बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर, जैसे मैंने बताया था, कहीं पे 5 है, कहीं 30, कहीं पे 70 है। Part about 20 kilometer to 100 kilometer in the continental area, a plate may be referred to as the continental plate or oceanic plate depending on which of two occupy a large पोर्शन ऑफ द प्लेट। कि अब बात करते हैं कहाँ पे, अगर वो ओशियन पे है तो उसको ओशियनिक प्लेट बोलेंगे, अगर वो कॉन्टिनेंट पे है तो उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे। पैसिफिक प्लेट्स इज लार्जली एन ओशियनिक प्लेट, वेयर एज द यूरेशियन प्लेट मे बी कॉल्ड ए कॉन्टिनेंटल प्लेट। समझ गए, पैसिफिक एक ओशियन है जो कि ओशियनिक प्लेट पर है, इसी तरह से यूरेशियन जो है एशिया और यूरोप का जो प्लेट है वो कॉन्टिनेंट के ऊपर है। The theory of the plate tectonic proposed that the Earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor plates.
ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन रिज ट्रेंचेज एंड फॉल्ट सराउंडेड दीज प्लेटेड। अब इसमें मेजर तो आपको पढ़ा चुका था, माइन मेजर प्लेट्स एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरेशिया जिसमें एशिया प्लस यूरोप आ गया, या यूरोप और एशिया को अलग अलग समझ लो, है इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीका। अब सब माइनर प्लेट ये पढ़ लेते हैं, कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट। इन प्लेट्स की जो लोकेशन है ये बुक में दे रखी है, एक बार आप इनको देख लें यहाँ पर कहाँ कहाँ पर है। ये प्लेट्स हैं आपकी, माइनर प्लेट्स दे रखी हैं और ये इनकी लोकेशन इस मैप में दे रखी है। कई बार पूछ लेते हैं वेयर इज द कोकोस प्लेट सिचुएटेड, तो कहाँ है, बिटवीन द सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। सेंट्रल अमेरिका कहाँ हो गया, ये सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके बीच में सेंट्रल अमेरिका है। और पैसिफिक वाले रीजन में इस तरफ जाएंगे तो अटलांटिक ओशियन आ, सॉरी अंटार्कटिक ओशियन आ जाएगा, एंड इसके वेस्टर्न साइड में ये आपके है। इसी तरह से नज़का साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक, साउथ अमेरिका नीचे की तरफ आ गया और नज़का ये रहा। तो इस तरीके से यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्लेट। दीज प्लेट हैव बीन कॉन्सिक्वेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। बता दिया प्लेट जो है रेगुलर मूव कर रही है जब से अपनी अर्थ बनी है। इट इज नॉट द कॉन्टिनेंट दैट मूव एज बिलीव बाय वैगनर, वैगनर ने कहा था कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। Continent are part of the plate and what move it is the plate. Moreover, it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological path. एक दो प्लेट्स के बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन मोस्टली जो प्लेट्स हैं they move away from each other because of the pole filling force and tidal force. However, later and shall continue to move in the future as well. फ्यूचर में भी ये मूव करती रहेंगी। Wagner had thought of all the continent to have initially existed as super continent in the form Pangeo. पहले Pangeo एक लैंडमास था और Panthalassa एक ओशियन या वाटर बॉडी थी। Discovery revealed that the continental masses resting on the plate have been wandering all through the geological period. The Pangeo was a result of converging of different continental masses were part of one or the other plate. पहले इनमें कन्वर्जेंस में बता रहा है ये प्लेटें एक दूसरे से टूट जा रही है और हो सकता है इन फ्यूचर ही वापस से आके मिल जाए। तो मिलेंगी किस वजह से, कन्वर्जेंट लैंड बाउंड्री की वजह से ये मिलेंगे। चलते हैं। साइंटिस्ट यूजिंग द पैलियोमैग्नेटिक डेटा हैव बीन डिटरमाइंड द पोजीशन हेल्ड बाय ईच ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट लैंड मास इन डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। जैसे आपकी डायनासोर एज आई थी तो उसमें काफी पीरियड वगैरह थे। डाइवर्जेंट बाउंड्री अभी मैंने आपको समझाया था, एक बार रीड कर लेते हैं। वेयर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्जेंट में प्लेट्स जो है मूव करती हैं एक दूसरे से। दिस साइड पर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड। The best known example of divergent boundary is the mid-Atlantic ridge at the American plate are separated from the Eurasian and African plate. जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है अटलांटिक रिज में अमेरिकन प्लेट यूरेशियन अफ्रीकन प्लेट से दूर होगी। पहले ये एक साथ मिली हुई थी। अपना पहले वाला टॉपिक था उसमें चैप्टर जो था उसमें था जिगजॉ के जरिए अपन ने पता लगाया था और फॉसिल के जरिए भी। अब ले लेते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। जब टू प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं, वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डिवाइडेड अंडर अनदर द लोकेशन फॉर सिंकिंग ऑफ ए प्लेट ऑकर ए कॉल्ड सबडिक्शन। जो है जब टू प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं सब घुस जाए एक दूसरे के अंदर। देयर आर थ्री वे इन विच कन्वर्जेंस कैन ऑकर बिटवीन एन ओशियन द कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में भी हो सकता है, टू ओशियनिक प्लेट्स के बीच में भी हो सकता है और टू कॉन्टिनेंट प्लेट्स के बीच में भी ये कन्वर्जेंट मूवमेंट हो सकता है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो कोई चीज बनती है ना ही बिगड़ती है। ठीक है। एज द प्लेट्स साइड हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेट्स ऑफ सेपरेशन जनरली perpendicular to the mid oceanic ridge. As the eruption don't take all along the entire crust at the same time, there is differential movement of a portion of the plate away from the axis of the earth.
ठीक है। अब रेट ऑफ द प्लेट मूवमेंट। अब अपन ने बात करी प्लेट्स में मूवमेंट होता है, लेकिन किस रेट से होता है? तो यह जो रेट है बहुत ही कम रेट होता है। इसमें क्या होता है 15 सेंटीमीटर एक ईयर में, या कहीं पर 2.5 सेंटीमीटर ईयर्स में, यानी कि कहीं ज्यादा मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और कहीं पे कम होता है। The strips of normal and reverse magnetic fields that parallel the mid-oceanic ridge help scientists determine the rate of plate movement. This rate were considerably the Arctic ridge has slowest way. Arctic region है वहाँ सबसे कम होता है, वहाँ पे 2.5 है। And the East Pacific rise near Easter Island in South Pacific about 3400 किलोमीटर west of Chile. चिली के साइड में है कोई वाला रीजन, जहाँ पे सबसे तेज स्पीड होता है 15 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड होती है। तो ये टाइड्स के ऊपर डिपेंड भी करती है, ठीक है। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। अब अपन ने बात करी तो इनको फोर्स कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी। वन साइंटिस्ट कन्वे दैट द रेडियोएक्टिव मटीरियल ड्यू टू द रेडियोएक्टिव मटीरियल मीन्स ड्यू टू द इंटरनल हीट, अंदर की हीट की वजह से वो कुछ बाहर आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी मशीन कोई भी चीज बाहर आएगी तो वो दूसरी चीजों को धकेलती है, उसकी वजह से भी ये जैसे अर्थक्वेक निकलते हैं, सॉरी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, तो नीचे से इंटरनल मटेरियल बाहर आता है तो वो उनको साइड में धकेलते हैं। तो ये कुछ फोर्स होती हैं, इनके बारे में साइंटिस्ट जो है कंफर्म नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। At the time Wegener proposed this theory of continental drift, most scientists believed that the Earth was a solid, motionless body. However, concept of seafloor spreading and the unified theory of plate tectonics have emphasized that both the surface of the Earth. Evidence आ गए, इस वजह से अब साइंटिस्ट मानने लग गए। Surface on the Earth and interior are not static and motionless but are dynamic. The fact that plates move is now a well accepted fact. मानने लगे हैं कि प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं। The mobile rock beneath the ridge plate is believed to be moving in a circular manner. The heated material rise to the surface, spread and begin to cool and then sink back into deeper depth. सुनो, मटेरियल बाहर आया, फैला और सिंक होके वापस चला गया। इसके लिए आपको रॉक साइकिल समझनी पड़ेगी। इग्निशियस रॉक्स आई, इग्निशियस रॉक से इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स बनेगी, ये भी टॉपिक में पढ़ा दिया मैंने। एक्सट्रूसिव जो रॉक्स होंगी वो वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद में सेडिमेंट उनके वहीं जमा हो जाएंगे, उनमें कुछ ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक मटेरियल की डिपॉजिट्स हो जाएंगे। देन आफ्टर वो उसके बाद नया मटेरियल आएगा, नीचे जाता जाएगा प्रेशर से, तो दिस इज नॉन एज द सेडिमेंट्री रॉक। और एक पर्टिकुलर डेप्थ में जाने के बाद में दैट कन्वर्ट इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर ड्यू टू द इंटरनल हीट और प्रेशर की वजह से वापस वो इग्निशियस रॉक्स बन जाएगी। तो वो रॉक साइकिल चलती रहती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट what scientists call a conventional cell or convectional flow, मतलब अंदर से हीट वगैरह का मटेरियल आता है। हीट विद इन द अर्थ कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज, रेडियो एक्टिव डीके एंड रेजिडुअल हीट। रेडियो एक्टिव मतलब जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है वो, और रेजिडुअल हीट मतलब वो मटेरियल जब बाहर निकल गया उसका बचा हुआ जो पार्ट है वो हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। द आइडिया इन 1930 which later influenced Harry Hens thinking about sea floor spreading, the slow movement of hot, soft and mantle that lie below the ridge plate is the driving force behind the plate tectonic. अब ले लेते हैं movement of the Indian plate. Listen carefully, Indian plates के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको कहते हैं India का southern part is known, it is also a part of the Gondwana land. Gondwana कौन सा था? When the Pangeo divided into two parts, northern part is known as the Eurasian plate and the southern part is known as the Gondwana land. So south, like South America, Africa and Australia, these are Antarctica, it's a part of the Gondwana land. So near about 200 million sea level ago पहले, suppose these are the Eurasian plates और ये अंटार्कटिका या गोंडवाना प्लेट। यहाँ से
इस टाइप का जो टुकड़ा है वो अलग होता है, जैसा कि आपको बुक में दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो ये धीरे 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 ऐसे आता है और यहाँ पर आके इस हिस्से से टकराता है। इस हिस्से से टकराने से पहले यहाँ पर इस जगह पर क्या था, टेथिस सी था, टेथिस सी, एक टेथिस सी था इसमें मेडिटेरियन सी है, अरेबियन सी है, इस तरीके से यहाँ पे टेथिस सी था। ये मटेरियल यहाँ आया, यहाँ आने की वजह से इनमें कन्वर्जेंस मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंस ये आया, ये यूरेशियन प्लेट थी, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये आया। तो यह आने के बाद यहाँ जो सी था ये प्लेट नीचे गई और ये जो सी था ये सारा का सारा मटेरियल इसने नदन पार्ट पे डाल दिया। इंडिया का जो नदन पार्ट है, जहाँ पे अपन सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, अगर पढ़ा हुआ आपने, तो मैंने कहा था हिमालयन बनने की वजह से यहाँ पे टेथिस सी था, टेथिस सी का जो मटेरियल था वो सारा का सारा गार्बेज जो था, बट वो इस नदन प्लेट पे आ गया, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस इंक्रीज द डेप्थ ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट की डेप्थ जो थी या वाइड डेप्थ जो थी वो बढ़ गई थी 1 to 2 किलोमीटर। याद आ गया? तो ये आया सारा मटेरियल आ गया। अब ये क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स आ गई, टेथिस सी खत्म हो गया, धीरे धीरे सारा मटेरियल यहाँ आ गया। अब यह टेक्टोनिक प्लेट जो आई और आने के बाद में थोड़ा सा अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक होने की वजह से ये प्लेट नीचे जा रही है और ये वाली जो यूरेशियन प्लेट है इसमें फोल्ड पड़ रहे हैं, समझ गए? ये प्लेट यूं, ये प्लेट यूं है और ये इसके नीचे आने की वजह से ये टकरा रही है इस जगह पर, टकराने की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं और इसकी वजह से ये फोल्ड बन जाते हैं। इसी वजह से हिमालयन माउंटेन इज नोन एज द फोल्ड माउंटेन। अब अपन पढ़ेंगे कि इसमें ये वाला जो हिस्सा आके यहाँ पे टकराया, तो ये हिस्सा कहाँ से क्या करते हैं, ये हिस्सा यहाँ पाकिस्तान जो है, यहाँ पे माउंटेन्स है और यहाँ पे ये माउंटेन्स है, ये हिस्सा यहाँ पे आके मिल गया। अब अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अंडरस्टूड? The Indian plate include peninsular India and the Australian continental portion। आ गया इंडियन प्लेट में, जिसमें पेनिसुला और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट था। मैंने बताया यहाँ से नीचे से चलकर ऊपर आया था। तो इंडिया को कह सकते हैं इट्स ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड इट्स ए पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेट। गोंडवाना से लैंड से ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया से जो पेनिसुला प्लेट है वो अलग हुई। The subduction zone along the Himalaya form the northern plate boundary in form of the continent convergence। दोनों का मेल हो गया। In the east, अब जो ईस्टर्न साइड में, अब ये याद करने वाला सिस्टम है, ईस्टर्न साइड में ये हिस्सा कहाँ तक फैला हुआ है और वेस्टर्न में ये हिस्सा कहाँ तक फैला हुआ है। In the east it extends through Ranikoma mountain of Myanmar, यानी कि म्यांमार वाले हिस्से से लेकर toward the island arc, ये हिस्सा तो यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे आइलैंड आर्क, यहाँ पे आइलैंड वगैरह भी बना देते हैं, आइलैंड बनते हैं। मैप देखो ये रहा, इसमें नहीं है इंडिया का मैप, इंडिया का मैप देखना, वो हिस्सा नीचे तक आर्क ही बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स ग्रुप्स जो हैं वो भी उसी प्लेट का हिस्सा ये बोल रहे हैं। द ईस्टर्न मार्जिन, फिर उस आर्क से नीचे तक आएंगे तो जावा ट्रेंच, यहाँ पे कुछ खाइयां वगैरह वहां तक का जो एरिया है, और ईस्टर्न मार्जिन इज स्प्रेडिंग साइड लेइंग टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया द फॉर्म ऑफ एन ओशनिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक में तक ये एरिया फैला हुआ है। द वेस्टर्न मार्जिन फ्रॉम कार्थर माउंटेन ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो वेस्टर्न वाला माउंटेन की दोनों माउंटेन के बीच प्लस में ये आर्क वाला हिस्सा इंडिया का उसी प्लेट का हिस्सा है। इट फर्दर एक्सटेंड अलोंग द मकराना कोस्ट एंड जॉइन द स्प्रेडिंग साइन फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट साउथ वेस्ट अलोंग द कैकोस आर्चीपेलागो। देखो ये वाला हिस्सा, फिर यहाँ पे मकराना कोस्ट है, वो पूरा एरिया फिर रेड सी वाला हिस्सा आ जाएगा। रेड सी कहाँ है? रेड सी में तो मेडिटेरियन और रेड सी के बीच में तो आपने पढ़ा होगा सुएज कैनल बनी है सऊदी अरेबिया के नीचे। The boundary between India and Antarctica plate is also marked by the oceanic rig divergent boundary running in roughly west-east direction and merging into the spreading side a little south of New Zealand।
India was a large island situated off the Australian coast in the vast ocean. The Tethys Sea spread it from the Asian continent till about 2 to 5 million year ago. पहले मैंने 200 बताया था, ये 225 million year ago पहले की बात कर रहे हैं. यहाँ पे Tethys Sea था. India is supposed to have started her northward journey about 200 million year ago. और इंडिया ने नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट किया 200 मिलियन ईयर एगो पहले. ठीक है. एट द टाइम व्हेन पेंजियो ब्रोक, जब पेंजियो टूटा था, इंडिया कोलेड विद एशिया अबाउट 40 to 50 मिलियन एगो. और जो एशिया के साथ में इंडिया मिला वो 40 to 50 मिलियन ईयर एगो पहले मिला, causing rapid upliftment of the Himalaya. The position of the India since about 71 million years till the present are shown in the figure. It also shows the position of the Indian subcontinent and the Eurasian plate. About 140 million years ago, the subcontinent was located at south 50 degree south latitude. यानी कि 140 million years ago पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर. तो इंडिया जो था 71 मिलियन ईयर एगो पहले नीचे था, 55 मिलियन ईयर एगो पहले ये यहाँ था, 38 मिलियन ईयर एगो पहले ये यहाँ आया, और 10 मिलियन ईयर एगो पहले ये आके इससे टकरा गया, मिल गया इस हिस्से से. यानी कि पहले इसकी स्पीड धीरे थी, बाद में ये स्पीड तेज हो गई. The two major plates were separated by the Tethys Sea, and the Tibetan block was closer to the Asiatic landmass. During the movement of the Indian plate toward the Asiatic plate, a major event that occurred was the outpouring of lava and formation of the Deccan Tract. अब जब ये प्लेट जो थी it moves toward the northern, इसी ड्यूरेशन में यहाँ से लावा वाला मटेरियल अर्थ से निकल कर आया और वो डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में बिखर गया. आपको अर्थक्वेक में कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज बताई थी मैंने, उसमें वॉल्केनोज बने थे, 4-5 टाइप के वॉल्केनोज थे. तो जो पेनिनसुला वाला जो वॉल्केनो था यहाँ पे था फ्लड बेसाल्ट वाला, उसमें लिखा हुआ भी था, देख लें बेटा. मैं टाइम दीज चैप्टर आर इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर. एक चैप्टर में जो आगे उसको भूलना नहीं है, वो की वो चीजें नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगी. तो इनको ढंग से आप पीछे वालों का साथ लेके चलो, कोई आगे वाला समझ में आएगा. मैं आगे वाले को दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसी में बताएंगे तो अपन आगे कैसे चलेंगे. This started somewhere about 60 million years ago and continue for a long period of time. Note that the subcontinent was still close to the equator. About from 40 million years ago, thereafter, the event of formation of the Himalaya took place. Scientists believe that the process is still continue. जैसे हमने कहा ये ऐसे आके टकराएंगे, टकराने की वजह से इस माउंटेन में फोल्ड पड़ गए, और ये पेड़ आज भी अंदर जा रही है. यो नहीं है कि बस इनका काम खत्म हो गया. ये जो गोंडवाना प्लेट थी या पेनिनसुला जो प्लेट थी, ये आज भी इस प्लेट को टक्कर मार रही है, जिसकी वजह से इस प्लेट में फोल्ड पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है. ध्यान रखना इस चीज का. एंड हाइट ऑफ द हिमालय इज राइजिंग इवन टू दिस डेट, और इन फ्यूचर में भी वो बढ़ती ही जाएगी. एक चीज बता देता हूँ, अर्थक्वेक के जो जोन्स हैं वो कहाँ का है, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं एक दूसरे से, वहां पे अर्थक्वेक प्लेट्स, अर्थक्वेक जो है ये एक टेक्टोनिक प्लेट्स है. इस प्लेट का जो बॉर्डर वाला एरिया होगा, यहीं पे ही अर्थक्वेक आएंगे, सेंटर में अर्थक्वेक नहीं आएगा. क्लियर है? आएगा लेकिन उसका हल्का फुल्का असर होगा, यानी कि मेजर डिस्ट्रक्शन जो है वो अपने बॉर्डर वाले एरिया में करेंगे, ये साइंटिस्ट बोलते हैं. लेकिन आज तक हम हमारी नेचर को नहीं समझे. पहले मैं समझा देता हूँ कि भाई बीच में क्यों नहीं आया, क्योंकि होता है अंदर से जब हीट आएगी उसको टक्कर मारेगी. टक्कर मारने के बाद में वो इसको हो सकता है यहाँ कंप्लीट प्लेट हो, कोई क्रैक्स नहीं है, तो मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा. तो यह मटेरियल इस प्लेट के साइड से निकलेगा, क्योंकि सॉफ्टन पार्ट की तरफ, बाहर वाले हिस्से की तरफ ये जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा. या जहाँ पे कोई प्लेट्स जो है आपस में जुड़ी हुई है, तो इन जुड़े वाले जॉइंट वाले हिस्से में, जैसे मैंने कहा हिमालयन प्लेट जो है वो दोनों प्लेट आकर टकराई,
जिस वजह से हिमालय में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। क्यों? इंटरनल हीट जो प्रेशर है वो इन्हीं ज्वाइंट से बाहर निकलेगा, इन ज्वाइंट से बाहर निकलने के बाद ये अर्थक्वेक आएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट विल, बट नेचर को हम अभी तक नहीं समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया गुजरात भुज, वो ऐसा जोन था जहां मतलब नो अर्थक्वेक जोन था, वहां अभी कभी अर्थक्वेक नहीं आते, लेकिन वहां पे सबसे भयानक डिस्ट्रक्शन वाला अर्थक्वेक आया। यानी कि रियल बात है, नेचर को हम नहीं समझे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक में अपन एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय।